السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے حضرت؟ ارے وہ ہم گاڑی میں چل رہے ہیں نا، ابھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے نیٹ ورک بن جاتا ہوں۔ جی ہاں، تو کل جوہر کے بعد بات کرتے ہیں حضرت سکون سے۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی نہ کرتے تو کرتے نا تھوڑی دیر 5 منٹ۔ جی 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 حضرت بدل ہند رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ بنگلور سے آئے تھے جی علی ماشاء گڑھ، اللہ، سبحان یہ بن ہے تو ضلع بلند شہر میں، جی سبحان اللہ۔ یہاں پر آ کے آپ نے قیام کیا اور اسلام کی تبلیغ، جی جی اور بہت بڑی مسجد ہے یہاں پر۔ جی تو کوٹہ میں بھی مشکل سے ملے گی اتنی بڑی مسجد، جی جی کوٹہ میں 2-3 ہی ہوں گی اتنی بڑی، ایک تو وگیان نگر کی ہو گئی ابھی، جی ایک 2-3 اور ہوں گی، ورنہ بہت بڑی مسجد بنائی حضرت کی۔ جی جی اور جائے کہ حضرت کے یہاں بڑا سکون ملتا ہے یہاں پر۔ شاہی زمانے کی ہوگی مسجد حضرت؟ شاہی زمانے کی یہاں سمجھ لو کہ 120 سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا قریب 1313 ہجری، تو سمجھ لو ہاں 1313 ہجری کا مطلب 130 سال پہلے انتقال ہوا۔ ہاں 130 سال، ہاں لگ بھگ 130 سال پہلے، 30 یا 133۔ ہاں ایسے کچھ سال پہلے انتقال ہوا۔ جی 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 تو مسجد سے وہ بتایا کہ وہاں پر ایک آدمی تھا کہ حضرت نے بنوائی تھی مسجد، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی عالیشان مسجد ہے، یعنی ایک صف میں 50-60 آدمی آ جائیں، جی 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 50 یا 60 آدمی، اور وہ ہے کہ 24 صفحے میں نے گنی، 24 صفحے تھی، سبحان اللہ۔ تھی جیسے بنا ہوا، باقی باہر ایریا وہ الگ ہے، جی جی بڑا روحانی سکون دیتا ہے۔ جی دیکھو صاحب، اولیاء کرام نے ہی اسلام چلایا ہے، جی ورنہ آج عالم دیکھا جائے نا تو عالم 20 لاکھ ہیں عالم انڈیا میں کم بیشی، جی جی لیکن دعا تو کسی کی بھی قبول نہ دونوں ہو کے رہی۔ ملایا جائے، چاروں کے ملایا جائے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث موجودی سب 20 لاکھ عالم ہو یا 50 لاکھ عالم ہو، ان کی دعائیں 20 قبول لاکھ کہاں تو ہو رہی ہیں عالم آج ہو کے ہی وقت جائیں میں؟ گے، جی 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 لیکن 20 لاکھ عالم مل کر اسلام کی تبلیغ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جی جتنی ان بزرگوں نے کر دی اکیلے نے، ایسی تبلیغ یہ 20 لاکھ عالم نہیں کر پا رہے، 30 کروڑ جی مسلمان جی نہیں کر پا رہے، کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل حضرت، کہاں مسلمان بنا پا رہے ہیں آج کل تو، اور مسلمانوں کو کاٹنے لگے ہوئے ہیں، کو کافر بنا دیتے ہیں، غلط غلطی بات میں کافر بنا دیتے مسلمانوں کو کاٹ، اور مسلمانوں کو تو آج کل وہ سنا تھا میں نے ایک ویڈیو آج، کون سے اشرف صاحب تھے وہ تو وہاں تک لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت جبرائیل علیہ السلام تک کہ وہ بھی بریلوی تھے، ان کا بریلوی عقیدہ تھا، حضرت میکا علیہ السلام کا بریلوی عقیدہ تھا۔ کیا ہو رہا ہے حضرت ان کو؟ وہ مجاہد اشرف ہے، وہ اوپر سر کے اوپر کیا معلوم کس طرح کا ٹوپا وہ باندھ کے آتا ہے، عجیب ناٹ کیوں کر ہاں مجاہد اشرف اشرف ایسی نام کچھ ہے، نام تھا ان کا۔ السلام کو بریلوی بتا جی 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 کو بریلوی بتا دیا، ابھی تھوڑے دن پہلے گلجار میاں نے بتا ہی دیا تھا اس نالائق نے کربلا میں سب بریلوی تھے۔ جی اب اندازہ لگائیے آپ، جی جی تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ ہماری لوگ تاریخ میں بک کر لیں گے۔ لیکن حضرت اہل بیت سے تو کاٹ رہے ہیں نا یہ لوگ، اہل بیت سے تو امت کو بالکل ہی دور کر دے رہے ہیں۔ وہ گلجار میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مولا علی کے جبے پہ ناز نہیں ہے، اور وہ تو بات پورے ہندوستان میں گونج رہی ہے، مجھے تو تاج شریعہ پہ ناز ہے، امام احمد رضا پہ ناز ہے، مفتی اعظم ہند پہ ناز ہے، لاہور بلا لوگ یہ ہے کہ وہی کر رہے ہیں کہ صاحب جو انہوں نے جبکہ ہمارے نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کری وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے جو چیزیں تمہارے درمیان سنو، قرآن ایک بریت یعنی اہل بیت، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہو۔ جی بالکل، قرآن اور یہ لوگ بیت اور یہ اہل بیت کی محبت سے تو بالکل ہی دور کر دے رہے ہیں، ان مولویوں کی محبت میں لگا دے رہے ہیں لوگوں کیا کو۔ معلوم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 1400 سال میں ایسی باتیں کسی کتاب میں نہیں ملیں گی جو ان لوگوں کے منہ سے نکل رہی ہیں۔ اب تو بہت زیادہ ہی ہو گیا حضرت، بہت زیادہ وہ یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا دیا بریلوی عقیدہ۔ وہ انہوں نے دروازہ کھولا نا، دروازہ انہوں نے اچھا یہ یوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تھا وہی ہم لوگوں کا، ایسے نہیں کہہ رہے ہیں؟
और उल्टा कह रहे हैं उसको कि जो बरेलियों का अकीदा है वही उनका था। देखो तो सही है, कैसी बात है करते। बरेली में भी तो 12 फिरके हैं, तो कैसे जी कह जी रहा हूँ कि जी आप बरेलियों का अकीदा था उनका? जी जी। एक दूसरे के अकीदे को हजम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बरेली बिल्कुल। बरेली अभी के आप अकीदे को हजम नहीं कर रहे हैं, आप तो बरेलियों के 12 ये शाखे देखिए ना, 12 शाखे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, रिया कचोजा वाले ने जब एक बार फतवा दिया था कि देवबंदी तो निकाह पढ़वा सकते हैं या उससे निकाह हो जाएगा, विवाह करना भी जायज है ना, तो जी उसके जी पीछे मौलवी लोग पड़ गए थे ना, मुफ्ती कलीम जी अनसी और ये शहजाद आलम, कौन जी कौन जी आने जी पड़ गए थे। बिलाल अनवर जो जी जी। जामिया उलूम पढ़ाते हैं, मुफ्ती बिलाल अनवर साहिब, और कि तुम्हें ऐसे कैसे जायज बता दिया देवबंदी का रजिए, तो है तो बरेली। बरेली जब बरेली मतलब का हजम नहीं कर रहा तो कैसे तुम कहते हो करबला वाले बरेली? जब इमाम अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी ने बोल दिया कि निकाह तो ब्राह्मण भी पढ़ा सकता है, हाँ, वो भी लिखा है उन्होंने फाजिल बरेली, उनकी किताब में लिखा हुआ है ना कि ये निकाह तो ब्राह्मण भी पढ़ा आसाद सकता है, तो शरीफ में अलमलफूज तो में भी देवबंदी है। नहीं पढ़ा सकता क्या? दूसरी बात देवबंदी यह भी है पढ़ा, जब कि ब्राह्मण पढ़ा सकता है तो देवबंदी भी पढ़ा सकता है ना हजरत। दूसरी बात यह है कि अभी इनसे कह दो अलीगढ़ में जो मुसलमानों को मारा है, जी चलो जी इनसे हाँ वो मुकाबले के 4 लिए चलो तो नहीं जाएंगे। हाँ, जो देवबंदी से मुकाबले में चले जाएंगे, जो कोई फाजिल बड़ी शान में कुछ कह दे तो उससे मुकाबले के लिए चले जाएंगे। जी 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 हाँ। और जो हुजूर की शान में गुस्ताखियां आए दिन हो रही हैं, उसकी इनको फिक्र नहीं। हजूर की शान में तो गुस्ताखियां बर्दाश्त कर रहे हैं ना ये लोग, लेकिन हाँ, अपने मौलवियों की शान में नहीं कर रहे हैं। क्या क्या बताओ, इन लोगों ने समझ में नहीं आ रहा, किस तरह का माहौल बना दिया है ऐसा अरबिस्तान माहौल में। खराब कर दिया है कि फलाना आदमी अरबिस्तान आला में हजरत का गुस्ताख है। अरब में इसलिए इनकी कोई पजीराई नहीं है, कोई वहाँ पर सुनवाई नहीं है। अरब नहीं कोई वैल्यू ही नहीं होगी, क्या वैल्यू अरब होगी? में कोई इनकी पकड़ ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। मक्का शरीफ, मस्जिद शरीफ में ना लिबनान में, बिल्कुल बिल्कुल। ना दुबई ये में, तो ना मिस्र में, ना आने वाले ज्यादा दिनों में पकड़। तो आने वाले दिनों में ये ग्रुप तो बिल्कुल अलग तरफ पड़ जाएगा हजरत, अगर लोग समझने लग जाएंगे तो। नहीं, जब ये बरेली बरेली को हजम नहीं कर रहा है तो फिर कैसे कह रहा है कि साहब करबला वाले बरेली हैं? अब जैसे जियाउल मुस्तफा साहब है, मुफ्ती जियाउल मुस्तफा साहब, उन्होंने इस हाँ पे फतवा लगाया हुआ। जियाउल मुस्तफा साहब है ना, मुफ्ती जियाउल मुस्तफा साहब, हाँ। उन्होंने अमीरुल कादरी पे फतवा लगाया हुआ है ना। आप जैसे कभी हजरत जावर मुस्तफा साहब का कुफ्र का फतवा है नहीं काजी पर, लेकिन लोग माने नहीं है। लेकिन ये बरेली वाले कहाँ मान रहे हैं, उनको बुला रहे हैं ना बस अपने एक स्टेज दूसरे पे में वो। तुम्हारे फतवे हैं, तुम बरेली बरेली को हजम नहीं कर रहे तो कैसे करे करबला वाले बरेली? वही तो, और तो अपने साहब स्टेज का पे तो और बुला भी रहे हैं। बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा फतवा उन्हीं का है, अमीर काजी पर, कि अगर ये जी इस्लामी हुकूमत में होता तो इसका ये असर होता। बेशक, हाँ अगर कितना बड़ा, इस्लामी कितनी हुकूमत बड़ी में बात होता है। तो बहुत सख्त मामला होता उसके साथ में, अमीर जी काजी का, जी, इसलिए मुस्तफा साहब का फतवा। वो भी तो बरेली भी है ना हजरत। दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर, कभी आप बम्बई जाओ तो मिलना उनसे, हजरत जी कारी रहीउद्दीन इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद बम्बई। जी इस जी बार बरेलियों में उनसे बड़ा कोई मुफस्सिर ही नहीं है पूरी दुनिया में। दो जी बार तो तफसीर मुकम्मल सुना चुके हैं। मैंने बम्बई में वो उम्र से पहले मुलाकात की ना, उनसे पूछा था, जी बताया तो 23 साल में एक बार मुकम्मल की, 23 साल में फिर दूसरी बार मुकम्मल की, अब तीसरी बार शुरू कर दी उन्होंने। जी पूरी दुनिया में कोई आलिम ही नहीं है जो जैसे तस्वीर उसने की है 2 बार मुकम्मल, पूरी दुनिया में। जी 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 और उन जी। तक को जब गुमराह ठहरा दिया कि उलमाए कौंसिल में देवबंदी के साथ झड़ता की हाँ नहीं होगी, तो हाँ, वो किसी मजलिस में सबके साथ बैठे हुए थे ना वो, किसी काउंसलिंग में सबसे साथ में बैठे हुए थे ना वो, इसलिए और शायद जब उनको मकनपुर फतवा वालों को लगाया। हजम नहीं करते, ये बदायूं वालों को हजम नहीं करते, कैसे कहना है बरेली करबला वालों को? जी 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 और वो मुजाहिद अशर ने इंतहा कर दी, जिन इस्लाम को निका इस्लाम तक को बरेली बता दी। और जो है कि क्या कहते हैं, मूसा इस्लाम को भी बरेली बता दी उसने, जी जी जी। तो कौन है हाँ मुजाहिद अशर में? बस ये सीधी बात ये है कि जो हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब को जो सबसे ऊपर मानता हुआ ना, वो सुपर बरेलवी है बस इनकी नजर में। बताइए, तो ख्वाजा गहीनाल पीर रहमतुल्लाह अलैह ने तो अकेले चंद साथियों का इस्लाम फैलाया, और ये बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमानों को काफिर बेशक बनाने में लग जाते हैं। बेशक बेशक। हजरत ख्वाजा साहब को कितना बड़ा एहसान है, और जाके भी जी अपने मौलवियों के डंके बजाना चाहते हैं, तो अजमेर के मुजावरों ने कुटाई कर दी थी, जी खूब जम के कुटाई करी थी मुजावरों ने वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कितना बड़ा तबीयत खुश पावर है हो गई थी, मुजावरों का, जबरदस्त फूटा था। तबीयत खुश हो गई थी मेरी। नहीं, इन जाहिलों को इतना इल्म नहीं है कि एक बादशाह के दरबार में गुलाम का नारा लगेगा क्या?
हाँ, ये तो बस यही चाहते हैं कि हर जगह उनके डंका बजाना है। हर जगह कैसे डंके बज जाएंगे? बादशाह के दरबार में गुलाम का नारा थोड़ी इनका बजेगा। बस नहीं चल रहा है तो हरम शरीफ में जाके भी नारे लगाते, जी 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 जी। ये तो हरम शरीफ के अंदर भी जाके नारे लगाते, बस नहीं चल रहा ना इनका। सबको गिरफ्तार करके डाल दिया जाएगा वहाँ पे। और ये फिर तो समझ लो वीडियो में कैद हो जाएगा, वहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, हाँ, ऐसा मुश्किल है, तो समझ लो आप। सब गिरफ्तार हो जाएंगे वहाँ पे। अरे साहब, वहाँ पर इनका जब ये इतने बड़े ये बताते हैं, तो वहाँ पर इनके इमाम क्यों नहीं है 100 साल? नहीं नहीं, कोई इमाम नहीं है वहाँ पे अरे इनका। इमाम मौजूद दूर बात है, झाड़ू देने वाला भी नहीं मिल रहा वहाँ इनका हरम शरीफ में। जी जी, बिल्कुल सही बात है। फिर अगर ये इतने बड़े काबिल होते वो ये सब फलाने और बता रहे ये थे इसके इमाम होते। कितना भी बड़ा ऐलान कर लें, हर मतलब जहाँ पर भी तरबियत के लिए बुलाते हैं ना लोगों को, तो सबसे पहले यही सबक देते हैं कि वहाँ के इमामों के पीछे नमाज नहीं अब पढ़नी। जैसे नरसिम्हा राव इस जमाने में वहाँ रहे थे, लेकिन इनकी कोई मानता नहीं है, सब पढ़ते हैं नरसिम्हा राव नमाज। बरेली में जब आए थे ना फाजिल थे, तो लाहौल पढ़ के भगा दिए थे इन लोगों ने। जी 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 तो ठीक है, हमें वही मालूम है कि ऐसा किया था। इनसे कहो कि जी क्या ऐसा कभी हुआ, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल, हम लोगों में इतना पावर है कि हमने प्रधानमंत्री को मदार पे नहीं जान दिया अलग। तो इनसे कहा जाए यार, जी तुम्हारे में इतना बड़ा पावर है कि तुमने प्रधानमंत्री को रोक दिया, यानी मदार जी पे जान दिया, तो तुम फिर ये कैसे मान लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का इमाम मुसलमान है? फिर कहते हैं अरे वो अल्लाह अल्लाह कादिर हंसी पर ये है वो है, फिर अल्लाह की बातें करने लगते हैं। हम्म। तो क्या अल्लाह रखा है? अल्लाह ऐसे शख्स को रखेगा है? जी कहते हैं अल्लाह की मर्जी है, तो अल्लाह की मर्जी से अल्लाह अल्लाह ऐसे काफिर को रखेगा? नऊजुबिल्लाह है। जी हजरत। ये कैसे कैसे गुमराह करते हैं, फंस जाते हैं, बहुत 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 करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। बहुत बुरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अब उम्मत समझने लगी है, हजरत नहीं, जहन कोटा खुलने में लगे हैं देखो लोगों के। 20% दूसरे लोग हो गए और 20% इनसे अलग होगा। क्यों होगा? जवान पीढ़ी सब अलग हो रही है कि यार जब मक्का शरीफ में नमाज नहीं होगी तो फिर हमारा तुम्हारे साथ जी रहने का फायदा क्या है? तुम्हारे पीछे भी क्यों नमाज पढ़े? हो सकता है जी, जवान सही लड़के बात। कहने लगे आगे चल के कि इमाम साहब जब जी मक्का मदीने के इमाम के पीछे नहीं होगी तो तुम्हारे पीछे कैसे जाए? चलो आज जब अलग मस्जिदें बनाएगा डॉलर। हो सकता है जवान जवान लड़के अलग अलग मस्जिद बना ले, पैसे की कमी नहीं, 100 लोग मिलके अरे 50 बाई हजरत 50 की जमीन खरीदो और मस्जिद बना लो। ये और बरेलियत जुमा वाले पढ़ने के जो लिए जितने भी 1000 इमामत करते किसी हैं को ना लोग, बुला दिया करेंगे, कभी भी देखना ना वैसा होगा। द्वार में बिलासपुर में, ये नासिक में, पोरबंदर में, ये ब, इंदौर में, उज्जैन में, ये रतलाम ब, में और बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में ऐसा होने लगेगा कि अब जश्न इमाम मूसा काजिम होगा, कोई रोक के दिखाए। जवान लड़के जब कहेंगे ना उदयपुर में कि कोई के बाप में जी बस्ती है इमाम में, तो रोके हम जश्न इमाम मूसा काजिम करवा के रहेंगे उदयपुर में। अगर तुम्हारे बाप में दम नहीं है तो मत आओ तकरीर करने, हम ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो इमाम मूसा काजिम की शान बयान करेंगे। अगर तुम्हारे ये अंदर हजरत दम है तो तुम बयान करो, आओ तुम भी आओ स्टेज, हम तो तुमसे कह रहा हूँ, करो बयान उनकी, अगर तुम्हारे पास इतना इल्म है तो। ये बरेली ये नहीं मसलक है, के जो अगर ये इमामत। उदयपुर वालों ने शर्त रख दी ना तो एक भी इमाम नहीं आएगा उदयपुर का, पूरे राजस्थान का, कि भाई चलो जोधपुर से राजस्थान में कहीं से भी बुला लो, इमाम मूसा काजिम की 1 घंटा शान बयान करें। अरे साहब हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या बात है? क्या वो उनको शियाओं के इमाम है? उनको मालूम ही नहीं है ना, इमाम है भाई, उनके बारे में जानकारी नहीं है ना। अच्छा फिर उदयपुर वाले कहेंगे चलो इमाम जाफर सादिक की बयान कर, नहीं साहब नहीं कर पाएंगे। चलो इमाम बाकिर की, नहीं उनकी बयान नहीं कर पाएंगे। अरे इमाम अली रजा की बयान कर, नहीं उनकी बयान नहीं कर पाएंगे। तो फिर किसकी बयान करो? उनको पढ़ाई नहीं है वो ना उन हमें लोग ने। फाजिल बलूर की करना आती है, वो कर देंगे। तो उदयपुर वाले भगा भी चलो, चलो बाहर जाते हो गया उदयपुर में तमाशा, नाटक बहुत हो गई। अब तो एक एक इमाम की शान बयान होगी, रोकना रोक लेना और तुम्हारा ये सब आया हो जाएगा। वो जश्न उमर ए- फारूक भी करवाएंगे, जश्न सिद्दीक अकबर तो होता ही है उदयपुर में, जश्न फारूक आजम, जश्न उस्मान गनी, जश्न हजरत अली भी वो करवाएंगे, एक एक करके करवाएंगे ना, तो फिर सुन्नियत उजागर हो जाएगी, जाहिर हो जाएगी। जैसे अबू बकर सिद्दीक इन तो करवाते हैं उदयपुर वाले, बहुत धूमधाम से करवाते इन लोगों ने अहले बैत हैं। के इमामों इस्लामी के बारे वालों में ने पढ़ा ही कहीं भी नहीं है। जश्न इमाम मूसा काजिम नहीं करवाया, न जश्न इमाम बाकर करवाया, न जश्न हजरत खालिद बिन वलीद करवाया। और हाँ, उन्होंने मदनी चैनल पे 1 महीना पूरा सबर का फाजिल बरेलवी के नाम वक्फ कर दी, पूरा महीना। और 1 घंटा इमाम जी जाफर के लिए वक्फ नहीं किया पूरे साल में, इमाम बाकर जी का जी या इमाम जैनुद्दीन का। हाँ, थोड़ा बहुत जिक्र तो कर लेते इमाम जाफर का, लेकिन इमाम मूसा काजिम की शान आज तक दादू सही हमने कहीं भी बयान नहीं की, किसी भी चैनल पे बयान नहीं। देखो 1 घंटे की तकरीर ऑल वर्ल्ड में नहीं मिलेगी आपको इमाम मूसा काजिम के बारे में।
जी जी एक घंटा बहुत बड़ी, आधा घंटे की आप नहीं ला सकते ढूंढ के लो। और फाजिल भाई के बारे में हजारों तकरीरें गूगल से निकल जाएंगी, हजारों। आप फाजिल भाई के बारे में आधा घंटे की तकरीर नहीं निकाल सकते। हजरत मुआज़ बिन जबल के बारे में नहीं निकाल सकते, हजरत उमर के बारे में नहीं निकाल सकते। इक्का दुक्का कोई मौलवी ने की होगी, लेकिन आम तरीके से नहीं। लेकिन हजरी मियाँ के बारे में जलसे हो रहा है, हजरत मुफ्ती आजम के बारे में, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नहीं हो रहा है, हजरत माल जी के बारे में नहीं हो रहा है, हजरत इमाम हसन अस्करी के बारे में नहीं हो रहा है। अब देखना उदयपुर के लोग मेरी ऑडियो सुन के कहेंगे यार ये बंदा सही बोल रहा है। अगर हुसैन काजी मेरा नंबर भी लेंगे 88 152 53 55 ऐसे कांटेक्ट करेंगे, क्या हो रहा है कराओ जश्न महमूद कालिम, देखते हैं कौन रोकता है उदयपुर, कौन सा इमाम है हम देखते हैं। खैरादी वाला का है, इधर का है, शबीना के कौन सा इमाम रोकेगा जश्न महमूद कालिम। नहीं, अहले बैत उनकी की बात शान करते बयान हैं तो होगी ना, हजरत, उस दिन उदयपुर के लोग बेदार हो जाएंगे कि ये है सुन्नियत, असली सुन्नियत ये है जो अतर हुसैन काजी ने बताया। ये है 1400 साल पुरानी सुन्नियत, ये है 1400 साल पुरानी सुन्नियत जो अतर हुसैन काजी बता रहा है। जो जब ख्वाजा गईम अजमरी के नजरिए से हिंदुस्तान में आई, हजरत निजामुद्दीन औलिया के जरिए से आई, हजरत शेख अलाउद्दीन सादे कलजरी के जरिए से आई, हजरत बुआइशा कलंदर के जरिए से आई, हजरत शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के जरिए से आई। ये है सुन्नियत, जिसमें किसी को बिला वजह बिल्कुल। काफिर और नहीं क्या, बनाया जाता है। जो काफिर है उसको काफिर कहा जाएगा, लेकिन तहकीक के बाद, यानी कि उठाया मुंह काफिर कह दिया। ये तो हर इंशाल्लाह किसी ठीक है, को फिर मैं अंगूठा बाद में बात करूंगा, ऐसे चलवा लेंगे चैनल पे, ठीक है। जी जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।